So this is a very important topic. We are going to discuss about this in today, class 7. Properties of addition and subtraction of an integer. तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे properties of addition. क्या पढ़ेंगे? हाँ, properties of addition. The first property is called closure property. Closure property. ध्यान देना. क्या property? Closure property. What is it? I will make you explain. Don't worry. Next is your commutative property. Commutative property. Next is your associative property. What property? Associative property. Good. Associative property. Okay. So let us now understand each and every property very nicely. Okay. There is one more property. It's not property. It's just factors. There is your addition, additive identity. It is called additive identity, and fifth is your additive inverse. Additive inverse. Next is a very small property. This property of 1. We'll understand about property of 1. So come on, let us focus here once again. What are the property? First is what? Closure property. Next is your commutative property, and next is your associative property. Next is your additive identity. Next is your what? Additive inverse and property of 1. These are the favorite one. Mainly is this one. Mainly is this property. Now let us understand more in a deeper concept, deeper way. What does this actually means? What does the closure property actually mean? Now let us understand what does the main concept actually refer here. Closure property देखो. If a and b are two integer, अगर a और b, these two be any number, okay? If a and b are two number, then a plus b, what you will get? Something c, and c is also some integer, okay? So therefore यही है आपका closure property. अगर दो इंटीजर को अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा. समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है कि इंटीजर्स आर क्लोजर. मीन्स व्हेन यू ऐड एनी इंटीजर, ओके, इट इज बाउंडेड और इट इज बाउंडेड. आपको क्या मिलेगा? आपको इंटीजर ही मिलेगा. जैसे एग्जांपल पकड़ लो, +5 + +3 क्या मिलेगा आपको? +8. क्या +8 इंटीजर नहीं है? एग्जांपल और पकड़ लो, जैसे कि -2 प्लस हम मान लेते हैं +7. तो क्या होगा? देखो इधर पे क्या होगा बोलो. प्लस से प्लस है, प्लस है कि नहीं? अब क्या आएगा? कैसा आएगा? -2 + 7, माइनस से प्लस है, माइनस 7 से 2 जाएगा तो 5 +5. तो +5 क्या इंटीजर नहीं है? मैं वेरी सिंपल, इतना बड़ा कुछ नहीं है. सिंपल चीज़ है कि अगर दो इंटीजर को प्लस करोगे आपको क्या मिलेगा? आपको इंटीजर ही मिलेगा. When you add two number to integer, you will get an integer. It means what? Integers are closer in addition. इसका मतलब है ये. समझ में आया कि नहीं? वही मतलब ऐसा माना, दुनिया अगर घूम के आएगा वही जगह का क्या होगा? वही तो होगा ना, है कि नहीं? रात हुआ, दिन तो हुआ, फिर से शुरू तो हुआ. क्लोजर मतलब क्लोज नहीं है क्या? आवर अर्थ इज रोटेटिंग और रिवॉल्विंग अराउंड ए क्लोज पाथ. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब वही है. क्लियर? से क्लोज मतलब देखो, इसको घुमाएगा यही मिलेगा आपको फिर से. तो इंटीजर को प्लस करेगा, क्या मिलेगा आपको? इंटीजर ही मिलेगा. इट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? Commutative property. Commutative property. What does it mean? Suppose if a and b are two integers, then a plus b will equal to what? b plus a. समझाएगा इसको. Thus integers, addition of integers is commutativity. Commutative. अगर आप ऐसा प्लस करोगे और उल्टा प्लस करोगे, आपको आंसर क्या मिलने वाला? सेम मिलने वाला. जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें छोटा एग्जाम्पल है, 2 + 5 और हाउ मच? कितना मिल रहा है आपको? 7 मिल रहा है. अगर उसको उल्टा करोगे, सपोज मानो कि 5 + 2, तब क्या मिलेगा? तभी 7 मिल रहा है कि नहीं? दैट मीन्स व्हाट? 2 + 5 = 5 + 2. उल्टा करने पर भी आपको सेम मिल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड योर commutative property. Whatever. Clear or not what I am saying? Let me take one more example. Suppose -3
-3 प्लस यह टेक -5 और +5, तो क्या मिलेगा आंसर? देखो माइनस से प्लस है माइनस, 5 से 3 गया तो 2। अब इसको उल्टा करते हैं, है कि नहीं? +5 प्लस, ये माइनस था ना, -3, देखो तो कितना मिलेगा? माइनस प्लस से माइनस, है कि नहीं? 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है कि नहीं? दैट मीन्स व्हाट? -3 + 2 या फिर 3 + -3 एक ही मिल रहा है आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं? उल्टा करने का भी सेम मिल रहा है। तो क्या बोलता है कि एडिशन आर व्हाट? एडिंग इनटू नंबर्स आर व्हाट? कम्युनिटी प्रॉपर्टी। उसको उल्टा करने के बाद भी आपको सेम मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, शैल वी अंडरस्टैंड? Okay, now look here very nicely. A, B and C. Remember, if A, B and C are 3 integer, then A plus B plus C is equal to, अगर ये दोनों को पहले करोगे या फिर इन दोनों को पहले करोगे, आपका आंसर क्या होगा? सेम होने वाला। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? फील होने के लिए। 1 + 2 + 3 ऐसा है। मानो कि दिस 2 इंटीजर, ये दोनों इंटीजर को हम पहले किया, कितना हुआ? 1 + 2 कितना होगा? 3। नाउ दिस वन लेफ्ट 3 + 3 how much? 6। एनी प्रॉब्लम? नो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इन दोनों को पहले करते हैं, 1 + 2 + 3। लेट अस ऐड दिस 2 प्लस 1 + 2 + 3 how much? तो 1 + 5 how much? 6। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? A plus B को पहले करो या फिर B plus C को पहले करो, ओके, यू विल गेट द सेम आंसर। मीन्स इन दोनों को पहले करो या फिर इन दोनों को पहले करो, द आंसर यू आर गोइंग टू गेट इज सेम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। वेरी गुड। सो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस टू नंबर -3 + 4 -5। लेट मी सॉल्व दिस टू फर्स्ट, ओके। सो -3 + 4 ऐसा आ गया, +-5। देखो क्या होता है, माइनस से प्लस है माइनस, है कि नहीं? तो कितना होगा माइनस करने से? इधर बोलो 1, है कि नहीं? प्लस है माइनस है -5, कितना होगा? माइनस से प्लस है -4। क्लियर? अभी हम इन दोनों को पहले करते हैं, इन दोनों को पहले करते हैं। लेट मी रब दिस पार्ट। क्वेश्चन आई एम डूइंग व्हाट? -3 + +4 + -5. Clear? Look here, my dear. I am doing these two part first, okay? I am doing these two part first. ये दोनों को पहला हम कर रहे हैं। -3 प्लस, अभी देखो इधर ध्यान से, +4 मतलब +4 पढ़ सकते हैं इसको, माइनस से प्लस है -5। दैट मीन्स व्हाट? -3 + 4 - 5 how much? -1. In doubt? No. So look here. Now, very interesting. -3 प्लस है -1. -, how much? +3 + 1 4. साइन बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, इसका आगे क्या था? माइनस था। ये देखो कैसे हमारा कि ना आंसर, देखो तो A + B करो या फिर B + C करो, आपका आंसर अल्टीमेटली क्या आने वाला है? सेम होने वाला है। दिस कॉल्ड द प्रॉपर्टी कॉल associative property. I hope the closure property, community property and the associative property is very clear to you. Clear or not, my dear? Very good. Now inverse. What is the meaning of additive inverse now? If A is an integer, what is A? If A is an integer, then A plus B, A plus 0. If you add anything with 0, what you will get? Anything only. है कि नहीं? Is equal to 0 plus anything. अभी एक ही मीनिंग है ना इसका। Hence 0 is called the additive identity. Additive identity मतलब एडिशन 0 से कुछ भी अगर प्लस करो तो कुछ मीनिंग नहीं है उसका। जैसे कि you have 5 apples now. 5 plus 0 how much you'll get? 5. या फिर आप ऐसा अगर करोगे 0 plus 5, क्या है मीनिंग इसका? 5. समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या होगा? 5 plus 0 करो या फिर 0 plus 5 करो, द मीनिंग इज सेम ओनली, द मीनिंग इज सेम, है कि नहीं? सपोज देखो, अभी देखो एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम? त्रिदीप। त्रिदीप को फर्स्ट टर्म में 70% मिला था और तुमको 0% मिला है। कितना मिला है? 0। अभी नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ है? इसको 0 मिला है, तुमको 70 मिल गया, तो बात सेम नहीं हो गया? दोनों को प्लस कर सेम नहीं होगा क्या? सेम ही तो अल्टीमेटली जाके। एक समझ में आया? क्लियर? आंसर 70 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी।
I hope it is clear. Very good. So look, very interesting now. Additive inverse means what? Inverse मतलब उसका उल्टा. Inverse means उल्टा. Example. Let me example. अभी देखो +2 उसका उल्टा क्या है? हाँ, -2. कितना होगा? +2 -2 कितना होगा? 0. वेरी गुड. -3 उसका उल्टा क्या है? +3. क्या होगा मिला के? 0 होगा. इसका मतलब क्या है? What does it means? If you take any numbers और उसका उल्टा लोगे, if you take any numbers along with this reverse number, you will get some 0. Understood? And this is called the additive inverse. I hope it is clear. For every integer a means किसी भी नंबर के लिए उसका उल्टा तो होता ही है कि नहीं? For every integer a there exists another integer -a such that a plus minus a equal to 0. Such that a plus minus a equal to 0. Or or addition of any two numbers 0 is called what? Additive identity. था ना? और इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो सिस्टम को बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. कौन सा? हाँ, इनवर्स ही तो है. यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है? या तुम लोग इनवर्स लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इनवर्स लिखो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. इनवर्स. Clear? Means adding one number with its reverse number, you will get what? 0. This is the meaning of additive inverse. I hope it is clear. Now let us go to the properties of subtraction. Same properties भी हम लोग subtraction का साथ भी है. So same like earlier. हाँ. Whatever we have learned properties in the addition properties, okay? The same properties we will learn on subtraction also. The first property of subtraction is what? Closure property. What does closure property means? Means, yeah, in earlier topic what we have learned that when you add any two number you will get a third number, is not it? And the third number is also a integer. Same thing is going to learn here also, that when you subtract two number you are going to get any new integer. Okay, this is called the closure property. For example, if a and b are two integer, then a minus b is equal to c, and this where c is always integer, c is also a integer, and this is called the subtraction, also a closure property, close on the subtraction. Clear? Example मानो, जैसे जो भी example मानो, जैसे कि -5. ओके, -5 क्या लगेगा? -5 + 4. ठीक है, देखो माइनस क्या होगा आंसर इसका? -5 माइनस प्लस माइनस कितना होगा? -9 होगा कि नहीं? कि -9 का इंटीजर नहीं है एक? सो वेरी सिंपल, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है. अगर मानो कि जैसे कि -2 क्या होगा? -4. क्या -4 का इंटीजर नहीं है? ऑब्वियसली है. तो किसी दो नंबर को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? फिर से आपको एक इंटीजर, नया इंटीजर मिलेगा. समझ में आएगी नहीं बात? सो सिंपल. सो दैट इज योर कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये. मीन्स व्हाट? कम्युनिटिव प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट कि अगर आप उल्टा करोगे उसको तो भी सेम नंबर मिलेगा कि नहीं. In addition, we have learned that if 2 plus 3, how much you will get? 5. And 3 plus 2 also what will get? 5. That is why addition was what? Addition was known as commutative. But let us check whether it is commutative in negative or not. ठीक है, अभी कर देखो. अभी बोलो तो 2 minus 3 कितना होता है? -1. कितना होता है? -1. अभी उसको उल्टा करते चलो. 3 minus 2 कितना होता है? देखो तो +1. क्या सेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? That means what you have learned that 2 minus 3 is not equal to 3 minus 2. समझ में आया है ना बाबू? हाँ? So we can call that commutative property. Subtraction is not a commutative property. Right here, if a and b are two integer, if a and b are two integers, then a minus b is not equal to b minus a. So we can say so. I hope it is clear. Very good. Huh? We can give another example. Suppose example -2 minus 3. Okay. Let us see it. -2 plus 3. How much? 1 you will get. Let us reverse the case now. Reverse the case. -3 minus 2. अभी देखो क्या मिलेगा आपको? -3 + 2 कितना मिलेगा? -1 मिलेगा कि नहीं? कि सेम हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है सब. Associative property, we have learned that addition was associative. Okay, now let us check whether subtraction is associative or not. Okay, let us firstly check with an example. So I have checked here 2 minus 3 minus 4. Let us see. First let us do by carrying these two first. Okay, so what will getting 2 minus 3, how much it is? Minus 1. Here is minus 4. How much will get? Minus 5. Any problem? No. Now let us carry on with the next process in the. So how much? Now if we add these two first. Okay, subtract this two. करो तो उसको देखो कितना होता है. 2 minus कितना होता है? 3 minus 4 how much? Minus 1. तो minus minus plus 1. Is that it? तो 2 minus 2 plus 1 how much? 3. क्या सेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? लेकिन प्लस में तो सेम होता था. That means here we have learned that a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. So can we say that the substitution is an associative property? No. So here if a, b and c are integer, then a plus, so not plus, no minus, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. So hence we can say that subtraction if I have it is clear? Very good. Properties of 0. When 0 is subtracted from any integer, we get the same integer as an answer. अगर 0 किसी नंबर से भी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा ना. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बहुत ईजी है. 5 माइनस 0 कितना मिलेगा? 5 मिलेगा. कुछ शक है इसमें? कुछ शक नहीं है. समझ में आएगी नहीं? जो भी माइनस 2 माइनस 0 करो कितना होगा? कितना मिलेगा? माइनस 2 ही मिलेगा आपको. नहीं मिलेगा आपको. 7 माइनस 0 करो कितना होगा? 7 मिलेगा. माइनस 10 माइनस 0 करो कितना होगा? माइनस 10 ही मिलेगा. तो what does it means? If you subtract any number from 0, what you will get? Same number. You will get the same number. I hope it is clear. Now look the next point. Properties of 1. When 1 is subtracted from any integer, we get the predecessor. Predecessor means what? उसका आगे वाला number. 2 का predecessor क्या है? 1 है. 5 का predecessor क्या है? 4. समझ में आ रहा है कि नहीं? If I subtract, देखो इधर बहुत easy है. 4 से अगर 1 जगह तो कितना में होगा? 3 होगा कि नहीं? तो 4 का आगे वाला नंबर क्या था? 3 था कि नहीं? माइनस 10 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 11. तो माइनस 10 का आगे वाला नंबर क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? मतलब छोटा नंबर नहीं. 9 कैसे? छोटा नंबर. माइनस 10 बड़ा है ना माइनस 11 बड़ा है? नेगेटिव नंबर पे उल्टा होता है कि नहीं? इधर देखो, इफ इट इज 0, इधर क्या था? 1 2 3. इधर क्या था? माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. तो अगर 2 से 1 माइनस कर, अगर 3 से 2 माइनस करेगा तो मिलेगा 1 मिलेगा कि नहीं? अब वो छोटा मिलेगा. मतलब 2 से 1 माइनस 1 मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इससे 1 माइनस करेगा तो यही मिलेगा कि नहीं? पीछे आएगा कि नहीं? वही देखो, इसलिए देखो 3 से 1 जाने से 3 से 4 से 1. एग्जाम्पल 5 से 1 गया तो कितना होगा? 4. लेकिन माइनस 5 से 1 गया तो कितना होगा? माइनस 6. पीछे जाता है नंबर, हमेशा पीछे जाएगा. ये 5 से 1 घट पीछे क्या होगा? 4 होगा कि नहीं? अगर माइनस 5 से 1 पीछे क्या होगा? माइनस 6. वेरी गुड, स्मार्ट बॉय. समझ में आएगी ना बात जो? सो क्लियर. सो नाउ you can easily carry out exercise 1b. I hope you can do it very well.